مسیح خداوند میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج لتوریہ سال کے دوران 30واں عام اتوار ہے اور لتوریہ کلام اس حقیقت کو ہمارے سامنے کھل کر بیان کرتا ہے کہ حلیمی اور فروتنی خدا کی نظر میں عمدہ اور پسندیدہ عمل ہے، اور فروتن کی دعا خدا کے حضور قبول ہوتی ہے۔ مغرور خدا کے حضور ٹھہر نہیں سکتا اور نہ ہی اس کی دعا خدا کو پسند آتی ہے۔ دکھاوا اور مغروری خدا کے حضور کراہت انگیز عمل ہے، اور دکھاوے کی دعا اور عبادت اور شکرانے اور نذرانے بے پھل اور قربانیاں بے اثر رہتی ہیں۔ بے شک مبارک ہے وہ شخص جو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت یشوع بن سراخ کی کتاب میں سے لی گئی ہے۔ یہ تلاوت ہماری توجہ ایسی دعا اور عبادت کی طرف مرکوز کرتی ہے جو خدا کی خوشنودی کے مطابق ادا کی جائے، ایسی دعا جو فروتنی سے کی جائے، کیونکہ فروتن کی دعا بادلوں سے گزر جائے گی اور خدا کے نزدیک پہنچے گی اور خدا اس کا بدلہ دے گا۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کے دوسرے خط تیموتھوس کے نام میں سے لی گئی ہے۔ پولس رسول اپنے شاگرد و ہم نوا تیموتھوس کو یہ خط دوران قید تحریر کرتا ہے۔ تیموتھوس پولس کا وفادار شاگرد ہے۔ پولس اسے نصیحت کرتا ہے کہ وہ ایمان میں ثابت قدم رہ کر خداوند میں دیانتدار بنا رہے اور مسیح کا وفادار سپاہی بن کر تمام ایمانی اور دیگر مشکلات اور آزمائشوں کا مقابلہ کرے اور بشارت کا کام جاری و ساری رکھے۔ پولس رسول نہایت فروتنی کے ساتھ اپنی رسالتی خدمت کے اختتام اور زندگی کے آخری ایام کو خیال کر کے آئندہ کے متعلق اشارہ دیتا ہے اور اپنا نمونہ پیش کرتا ہے کہ میں اچھی لڑائی لڑ چکا ہوں، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے، میں نے ایمان کو سنبھالے رکھا ہے۔ آج کی جو انجیل مقدس ہے وہ مقدس لوکا میں سے آج کی دوسری تلاوت لی گئی ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل ان واقعات پر زور دیتی ہے جو غیر قوم، گناہ گار، پست حال اور رد کیے ہوئے لوگوں کی قبولیت اور نجات سے متعلق ہے۔ یسوع مسیح تمام انسانوں اور قوموں کا نجات دہندہ ہے، وہ سب کی پرواہ کرتا ہے، وہ سب کی قبولیت اور نجات کا خواہاں ہے۔ بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ اور راست باز جتاتے ہیں اور دوسروں کو کم تر اور حقیر اور گناہ گار سمجھتے ہیں، مگر خدا کی نظر میں ادنا، فروتن، غریب، مسکین، رد کیے ہوئے، تائب اور گناہ گار، عاجز اور ملتجی راست باز ہیں، مگر مغرور خدا کو ناپسند ہیں۔ خدا کی بادشاہی میں وہ چھوٹے ہیں۔ یوں مرقوم ہے، جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ آج کے تمثیلی اقتباس میں فریسی کا کردار ایک ویلن کا اور محصل کا کردار ایک ہیرو کا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے حلیمی اور فروتنی کی اہمیت اور عظمت کے متعلق سکھانے کے لیے فریسی اور محصل کی ایک خوبصورت تمثیل ہمیں سنائی ہے۔ فریسی یہودیوں کے 3 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ یہ بڑا خاص فرقہ تھا۔ فریسی شریعت پر سختی اور پابندی سے عمل کرنے والے، روایات کو ماننے والے، روزہ اور ریاضت میں کاملیت رکھنے والے اور دہ یقین دینے میں اور روزمرہ زندگی میں تمام تر شرعی قربانیوں اور پابندیوں اور رسوم ادا کرنے والے تھے۔ یہ یہودی مذہب میں اور معاشرے میں اہم مقام اور مرتبہ رکھتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے تمثیل کے ذریعے 2 کردار اور 2 رویے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ مقصد ایک ہی ہے، یعنی خدا کے حضور دعا۔ تضاد یہ ہے کہ ایک فریسی ہے اور دوسرا محصل۔ ایک شخص سماج میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے اور دوسرا ایک گناہ گار کی پہچان رکھتا ہے۔ ایک شریعت پر پابندی سے عمل کرتا ہے، جبکہ دوسرا رومی حکومت کے لیے محصول اکٹھا کرتا ہے۔ ایک مذہب میں فخر کا باعث ہے، جبکہ دوسرا سماج میں ٹھوکر کا سبب،
फरीसी अपनी नज़र में नेकोकार जबकि मुहस्सल एक गुनाह। दोनों यक वक्त हैकल में दुआ करने जाते हैं। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। जाए दुआ भी एक ही है, मबूद भी एक ही है, लेकिन अंदाज़े दुआ फ़र्क फ़र्क हैं, अल्फाज फ़र्क फ़र्क हैं, खुदा के हजूर रवैये फ़र्क फ़र्क हैं। फरीसी खुदा के सामने खड़े होकर अपनी जिम्मेदारियाँ और शरीयत पर पाबंदी से अमल करना जताता है, जबकि मुहस्सल खुदा के हजूर कदम रखने से भी हिचकिचाता है। फरीसी दूसरे को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराता है, लेकिन मुहस्सल आसमान की तरफ नजर करने से भी शर्माता है। फरीसी इस मुहस्सल को गुनाहगार गिरदानता है, लेकिन मुहस्सल छाती पीट पीट कर रहम की इल्तिजा करता है। साफ जाहिर है कि फरीसी शख्स नहायत पारसा, परहेजगार और नमाजी होगा, कोई शक नहीं, लेकिन उसके अंदर के गुरूर और तकब्बुर ने उसको खुदा की नज़र में मकबूल नहीं होने दिया। बल्कि दूसरी तरफ एक मुहस्सिल है जो दूसरों की नज़र में अच्छा नहीं होगा, बुरी नज़र से देखा जाता होगा। वो रोमी हुकूमत के लिए महसूल लेता है, यहूदियों की नज़र में गैर दयानतदार है, बल्कि एक गुनाहगार है, लेकिन उसकी आजिज़ी, उसकी हलीमी और फितरती ने उसे खुदा का मकबूल नज़र बना दिया। वो ज़ीरो से हीरो बन गया। अगर फरीसी शरीयत, शरई कुर्बानियों, रोज़ा रियाजत, तय यकी की अदायगी और रवायात की पासदारी और सब बातों में कामिल होगा, लेकिन दुआ में मुहस्सिल ही कामिल नमूना बना है और रासबाज ठहराया गया। खुदा यसु मसीह का ये फैसला है कि मुहस्सिल शख्स फरीसी की निस्बत रासबाज ठहर कर अपने घर गया। यसु मसीह सिखाना चाहते हैं कि हलीमी और फितरती में हमारी दुआ खुदा के हुजूर पेश की जाए। दुआ क्या है? दुआ है खुदा से मांगना, दरख्वास्त करना, किसी चीज़ की तलब करना, दस्तक देना, इल्तिजा करना, फरियाद करना, इल्तमास करना और इस्तदा करना। दुआ इंसान का खुदा के साथ एक शख्सी राब्ता है। ये ईमानदार और खुदा के दरमियान एक खूबसूरत मुकालमा है। दुआ इंसान को खुदा के साथ मुत्तहिद करती है। ये खुदा की कुर्बत में बढ़ने का एक जरिया है। दुआ शैतान के खिलाफ निबरत आजमा होने के लिए एक पायदार हथियार है। दुआ आफतों और मुसीबतों के खिलाफ एक मजबूत ढाल है। दुआ आजमाइशों में साबित कदम रहने का जरिया है। दुआ बहाली का जरिया है। दूसरा अहबार 7 बाब उसकी 14वीं आयत और याकूब रसूल का ख़त 5 बाब 14 था 16वीं आयत तक। दुआ इंसान को खुदा के करीब लाती है। दुआ खुदावंद के जलाल के ज़हूर का मौजब है। दूसरा अहबार 7 बाब और पहली 3 आयात। दुआ इंसान को रूहानी इत्मीनान अता करती है। दुआ ही इंसान को हलीम और फरोतन बनाती है। दुआ में जो रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है वो फरोतनी और इनकसारी का है। फरोतनी और इनकसारी खुदावंद के खौफ का अजर, दौलत, इज़्ज़त और ज़िंदगी है। इमसाल की किताब उसका 20वां बाब और 4थी आयत। खुदा को इंसान की फरोतनी और हलीमी पसंद है, क्योंकि फरोतनी करने वाले की दुआ बादलों से गुजर जाएगी। सिराख 35 बाब 21वीं आयत। खुदा मगरूरों का सामना करता पर फरोतनों को फजल बख्शता है। तुम खुदावंद के हजूर में फरोतनी करो तो वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। अय्यूब 4 बाब 6 था 10 आयात और पहला पतरस 5वां बाब और 5वीं आयत। खुदावंद यसु मसीह ने फरोतनी में दुआ की। मुकद्दस मत्ती की अंजील 26 बाब और 39वीं आयत। आंसू बहा बहा कर दुआ की। इब्रानियों 5 बाब और 7वीं आयत। मुकद्दसा मोनिका ने अपने बेटे मुकद्दस अगस्टिन की रूहानी तब्दीली के लिए दिन रात रो रो कर दुआएं की। जब हम दुआ के लिए खुदा के हुजूर जाते हैं तो खुदा को अपने काम नहीं बताते, ना ही दूसरों के साथ अपना कोई मुवाजना पेश करने जाते हैं, ना ही अपनी पारसाई या खुद सताई या खुद नुमाई करने जाते हैं, और ना दूसरों को रद्द करने या मुद्दे इल्ज़ाम ठहराने जाते हैं, बल्कि खुदा के हजूर फरोतनी से मांगने जाते हैं, खुदा के हजूर इल्तिजा करने जाते हैं।
बाइबल मुकद्दस में हमारे लिए हलीमी और फरोतनी की बेशुमार मिसालें हैं। चंद एक मुलाहजा फरमाइए। मूसा बड़ा हलीम मर्द था। अदद 12 बाब और तीसरी आयत। सुलेमान नबी जिसने बादशाह होते हुए फरोतनी से हिकमत और दानाई मांगी। दूसरा अहबार पहला बाब 7 ता 13 आयत। यसु मसीह की फरोतनी मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और 29वीं आयत। फिलिपियों के नाम खत उसका दूसरा बाब और 8वीं आयत। मुकद्दसा फस्तीना कहती हैं, जो हलीमी सीखना चाहता है वो खुदावंद यसु मसीह के दुखों पर ध्यान करे। मुकद्दसा मरियम की फरोतनी लूका 1 बाब 37वीं आयत फिर 48 तक। मुकद्दस यूसुफ इनकी फरोतनी मत्ती की अंजील पहला बाब और 19वीं आयत। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पहला खत करंथियों के नाम 15 बाब और 9वीं आयत। मुकद्दस पौलुस रसूल की फरोतनी हमारे सामने है। कलीसिया की तारीख में बेशुमार मुकद्दसीन हैं जिन्होंने हलीमी और फरोतनी में खुदा की मोहब्बत और कुर्बत का बड़ा गहरा तजर्बा किया। उन्होंने खुदा की नज़र में भी मकबूलियत पाई और इंसानों की मोहब्बत में भी जीती। उन्होंने ईमान और दुआ में भी पुख्तगी और कामों में भी कामयाबियत पाई। हम इबादत के लिए खुदा के हजूर जब गिरजाघर में जाते हैं तो बड़ी आजिज़ी और फरोतनी से आते हैं। हम पाक मास के आगाज़ में ही बड़ी हलीमी के साथ अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हैं। तौबा करके खुदा का रहम और गुनाहों की बख्शिश पाते हैं। मौजूद मुकाम पर घुटने टेकते हैं और पाक शराकत से पहले ये इकरार करते हैं कि ऐ खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। हमें खुदा के हजूर हलीमी और फरोतनी से दुआ करनी चाहिए। मुकद्दस विंसेंट डी पॉल फरमाते हैं, खुदा से दुआ मांगो कि वो तुम्हें गुरूर का मुकाबला करने के लिए ताकत बख्शे, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हर अच्छाई की नाकामी और बुराई की जड़ है। खुदा मगरूरों का सामना करता है। मेरे अज़ीज़ों, गरूर एक बहुत बड़ा गुनाह है जिससे खुदा को नफरत है। इमसाल की किताब उसका 8वां बाब और 13वीं आयत। गरूर का सर हमेशा नीचा रहता है, लेकिन फरोतनी इंसान को सरफराज करती है। खुदा यसु मसीह ने बेजा फ़ख्र और गरूर के बरअक्स हमें खुद इनकारी का दर्स दिया है। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और 24वीं आयत। इंसान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो मिट्टी से बनाया गया। तकवीन की किताब उसका दूसरा बाब 7वीं आयत। इंसान ने अपने गुरूर में आखिर खुदा की हुक्म अदूली की और सजा पाई। तकवीन की किताब उसका 3रा बाब और 17वीं आयत। क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौटेगा। तकवीन उसका 3रा बाब और 19वीं आयत। बाबल के मुकाम पर बनी आदम अपने गुरूर के सबब प्रागदा हुए। तकवीन की किताब उसका 11वां बाब और पहली 9 आयत। पौलुस रसूल अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करके ईमानदारों को मसीही ज़िंदगी और मसीह की पैरवी का बेहतरीन नमूना देता है। दूसरा ग्रंथियों 11 बाब और 30वीं आयत। मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस अगस्तिन फरमाते हैं कि गरूर ने फरिश्तों को अबलीस बना दिया, जबकि हलीमी ने और फरोतनी ने इंसानों को फरिश्तों जैसा बना दिया। फरीसी और मुहस्सिल की तमसील हमें चैलेंज करती है कि हमारी दुआ कैसी होनी चाहिए और दुआ में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। अगर हम फरीसी की ज़ुबान बोलते हैं तो खुदा की बादशाही में हमारी कोई जगह नहीं है, और अगर मुहस्सिल की माने तो खुदा का रहम मांगते हैं, आजिज़ी और हलीमी के साथ खुदा के हजूर इल्तिजा करते हैं, तो खुदा की शफकत से हम ज़रा भी दूर नहीं होते। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा से मदद मांगें कि वो हमें हलीमी और फरोतनी में बढ़ाए, ताकि हम हमेशा खुदा की राहों में हलीमी और फरोतनी से चलते रहें। आमीन।